Hello students, today we will start new chapter, numerical applications. Okay, and the first topic in numerical application is average. You very well know that what is the average? Average means average value. Like suppose in one subject you got 60 marks, in one subject you got 70 marks. And what is the average value and mean value of both the subject? How much marks you get at average? That is 65 per subject. इट मीन्स आपने एवरेज मीन्स अप्रॉक्स कितनी वैल्यू आपने सब सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स अप्रॉक्स सब सब्जेक्ट में आपने गेन किए, दैट इज कॉल्ड एवरेज और मीन वैल्यू. ओके, एवरेज इज गिवन बाय, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सपोज इन द 5 सब्जेक्ट यू हैव गॉट 5 डिफरेंट मार्क्स, लाइक इन वन सब्जेक्ट 15, 160, 70, 80 एंड 90. देन व्हाट विल द एवरेज वैल्यू? एवरेज मार्क्स क्या होंगी? सबका सम करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन थे, दैट इज 5. ओके, thus we can find average value. Now one question is given to us. A family consists of 2 grandparents. एक फैमिली में 2 grandparents है, 2 parents हैं, 3 grandchildren है. The average of the grandparents age is 67 per year. 67 years. Grandparents की एज का एवरेज क्या है? 67. And that of the parents age, that is 65. It means parents की एज का एवरेज क्या है? 35. And that of the children is 6 years. And grandchildren की एज का एवरेज है 6 years. यानी 3 जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनकी एज का एवरेज 6 ईयर है, यानी अप्रॉक्स 6 ईयर का हर एक बच्चा है. अगर कोई 2 ईयर बड़ा है तो कोई 2 ईयर छोटा है. ओके, एवरेज क्या आएगा? 6 ईयर. व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली? एवरेज एज निकालने से पहले टोटल एज चाहिए हमें सबकी. 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं और एवरेज एज है 67. वी नो दैट एवरेज विल बी इक्वल टू sum and number of observation. ओके, सो यहाँ पर हमें सम निकालना है. ग्रैंड पेरेंट्स की दोनों ग्रैंड पेरेंट्स की एज का सम निकालना है. तो कितने ग्रैंड पेरेंट्स? 2 है, उनका एवरेज हमें गिवन है. व्हाट विल आई यूज फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज average age will be equal to sum of age upon number of person. और आप सिंपली वैसे भी लिख सकते हैं sum of observation upon number of observation. Okay, so now from here the sum of age will be equal to एवरेज एज. ये टर्म सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एवरेज एज मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ पर्सन. तो ग्रैंड पेरेंट्स की एज का सम क्या होगा? विल बी इक्वल टू कितना एवरेज उनका? 67 ईयर्स. और कितने ग्रैंड पेरेंट्स है? 2. That will be 2. Okay, so I will get 134 years. Similarly, sum of parents' age. What is the average age of parents? That is given to us 35. And how many parents are there? 2. 70 years. Sum of children's age. What is the average age of children? Average age of children is given that 6. And how many children are there? 3. Okay, and the total will be 18
ईयर्स. ओके, नाउ हमारे पास टोटल ग्रैंड पेरेंट्स की एज है, टोटल पेरेंट्स की एज है, टोटल चिल्ड्रंस की एज है. अब इन सबको सम करेंगे तो फैमिली के सब मेंबर्स की टोटल एज आ जाएगी. ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने फैमिली में? 2, 2 and 3, दैट इज 7. 7 पर्सन फैमिली में रहते हैं और ये उन सबकी एज है. इनको ऐड करने पे मुझे टोटल एज मिल जाएगी एंड द नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली आर 7. Okay, students? Okay, students. Now look at here. What will the total age of the family? That will be 134 grandparents की एज, दोनों grandparents की एज. ओके, ये 2 parents की एज प्लस 3 children's की एज. Then the sum will be equal to 222 years. Okay, students? Now, total person and family are 2 grandparents, 2 parents and 3 children. That is 7. Now the average age of family. We will calculate now average age of family. Average age of family. That will be the total age of family upon total number of person in family. In family. आप सिंपली राइट डाउन कर सकते हैं द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देयर इज नो प्रॉब्लम. So I will get 222 upon 7. That will be equal to 31.714. Maximum 3 digit निकालिएगा. That's it. Years. आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 31 years एंड इसको मंथ में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं. That will be no problem. But it's okay with this. Okay. Now you can write also in the decimal format. Now taking another example. The average age of husband, wife and their children 3 years ago was 27 years. मीन्स 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड तीनों की एज का जो एवरेज है वो 27 years था. एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड, इट मीन्स एवरेज एज, दैट ऑफ इज यूजिंग फॉर दिस वर्ड एट द प्लेस ऑफ एवरेज एज. That of the wife and the child 5 years ago. और 5 years पहले वाइफ एंड चाइल्ड की एवरेज एज कितनी थी? 20 years. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड. हमें हस्बैंड की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एज? एवरेज एज विल बी इक्वल टू द टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन. Total age of, now here are the family, husband, wife and child. Age of husband, wife and child. इन तीनों की टोटल एज है अपॉन एवरेज के लिए नंबर ऑफ पर्सन, दैट इज 3 इन दिस केस. इस केस में कितनी है? 3. What is the average is given to us? 27 years. That is for 3 years ago. Okay? 3 years ago, कितनी एज थी? Average 27. And that is the sum of total age of husband, wife and child upon 3. और इफ यू वांट आप इसको एक्स वाई एंड जेड लेट लिख करके कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. लेट द एज ऑफ हस्बैंड इज एक्स, एज ऑफ वाइफ इज वाई एंड एज ऑफ चाइल्ड इज जेड. आप ऐसे भी कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम.
जैसे रिमेंबर दैट अभी हम बात कर रहे हैं 3 ईयर एगो की. सो दैट विल बी, इफ आई मल्टीप्लाई हियर, दैट विल बी 81. द टोटल एज ऑफ husband, wife and child. ये कब है बात? That is for 3 years ago is 81 years. I have just multiplied this term here. Okay? अब ये बात कर रहे हैं हम 3 ईयर पहले की. तो प्रेजेंट में कितनी टोटल होगी एज इनकी? ऑब्वियस है 3 ईयर्स हस्बैंड की भी एज बढ़ी, 3 ईयर्स वाइफ की भी एज बढ़ी और 3 ईयर चाइल्ड की भी एज बढ़ी. इट मीन 3 + 3 + 3 9 ईयर टोटल एज इनकी इंक्रीज हुई है. टोटल एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड एट प्रेजेंट, that will be 81 plus 3 plus 3 plus 3. That will be 90 years. मतलब आज की डेट में इन तीनों की एज का सम कितना है? 90 years. Now what the second relation is given to us? That is given that the average age of wife and child 5 years ago was 20 years. Now we will consider this relation. What is given that? Average, we are talking about now 5 years ago. Average age will be equal to the sum of age of wife and child plus upon the number of person. How many number of person are there? 2. So this is given to us. The average age हमें given है कि 5 year before इनकी average age थी 20. The sum of age of wife and child upon 2. It means is multiplying this term here, that will be 40. It means 5 years ago wife and child दोनों की एज का सम 40 years था. It means sum of age of wife and child 5 years ago. 5 years ago कितनी थी? 40 years. Okay? Now we will talk about at present. तो आज प्रेजेंट में दोनों की एज का सम कितना होगा? ऑब्वियस है 5 ईयर में वाइफ की भी एज 5 ईयर बढ़ी है और चाइल्ड की भी 5 ईयर बढ़ी है. दोनों की 5 ईयर बढ़ी है. दैट इज 50 years. अब एट प्रेजेंट हमारे पास तीनों की एज का सम है और एट प्रेजेंट वाइफ और चाइल्ड की एज का सम भी है. तो व्हाट विल सिंपली डू? द हस्बैंड्स एज एट प्रेजेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ ऑल 3 minus the sum of age of wife and child. So now present age of then will be equal to sum of age of husband, wife and child at present. present की बात करें तो at present का ही निकालेंगे हम minus sum of age of wife and child at present. Okay, so what is the sum of all three age at present? That is 90 year. और दोनों की सम वाइफ और चाइल्ड की एज का सम कितना है? दैट इज 50 years. So that will be equal to 40 years. यानी हस्बैंड की एट प्रेजेंट एज है 40 years. Okay, then in this way you can easily find the average value, or if you are given the average value then you can find the particular observation. Okay, now considering one more example. Now consider that a bike covers a certain distance from A to B at 50 km per hour and return back to A. It means simply A to B
एक बाइक जब ए टू बी जा रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जब वापस बी टू ए रिटर्न हो रही है तो दैट इज द पर्सन स्पीड इज, और द बाइक की स्पीड इज 56 किलोमीटर पर आवर. नाउ वी नीड टू फाइंड द एवरेज एज, यानी we need to find the average speed. Okay, now when we are talking about the speed, what is the formula for speed? We know that speed is equals to distance upon time. We must know about that, what is the distance at the time it is taken. Okay, we simply cannot do like that 50 plus 56 upon, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि 1 किलोमीटर ही गया और 1 किलोमीटर ही आया है, हमें गिवन नहीं है. ओके, तो हम इस केसेस में जब भी आपको याद रखना है स्पीड, टाइम और गिवन हो, तो हम टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम पे बात करेंगे. ओके, सो व्हाट इज लेट, हमें तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो हम लेट कर सकते हैं कि लेट स्पीड डिस्टेंस इज एक्स. तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड गिवन है, वी कैन फाइंड टाइम. मैंने डिस्टेंस ही क्यों लेट किया है, बिकॉज डिस्टेंस जो है जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम डिस्टेंस सेम है, बट टाइम ऑब्वियसली चेंज होगा. यहाँ जब हम जा रहे थे तो टाइम ज्यादा लगा, जब हमने स्पीड इंक्रीज कर ली तो हमें टाइम कम लगेगा, वो हमें गिवन नहीं है. लेट डिस्टेंस इज बिटवीन ए एंड बी इज एक्स किलोमीटर. हमने डिस्टेंस एक्स किलोमीटर लेट कर ली. नाउ वी कैन फाइंड द टाइम बिकॉज नाउ वी हैव स्पीड एंड डिस्टेंस. ओके, लुक एट हियर. नाउ वी नो दैट द टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो जब हम पॉइंट ए टू बी गए तब ऑब्वियसली टाइम अलग लगा, और जब बी टू ए आए तब ऑब्वियसली टाइम अलग लगा. व्हेन वी मूव फ्रॉम, और द बाइक मूव फ्रॉम A to B, जब बाइक A to B पॉइंट पर गई, द टाइम, व्हाट इज द टाइम, लेट दिस इज T1. द टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट द डिस्टेंस, दैट इज फिक्स x किलोमीटर, और A to B मूव करते हुए हमारी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, that will be in hours because it is in kilometer and it is kilometer per hour, that's why it is in hours. When from B to A, जब वापस B to A आए तो ऑब्वियसली हमारा टाइम चेंज होगा, और ऑब्वियसली पहले से हमें कम टाइम लगने वाला है बिकॉज हमारी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है. तो टाइम T2 will be equal to distance upon speed. Okay, that is written hours. H means for hours. इतने hours हमें लगे थे. अब हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस, that is equals to, जाते वक्त हमने डिस्टेंस कवर की x, वापस रिटर्न के टाइम डिस्टेंस कवर की x. इट मीन्स टोटल 2x किलोमीटर. ओके, एंड दैट व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, जाते वक्त हमने टाइम लिया x अपॉन 50 आवर्स, और आते वक्त हमने टाइम लिया x अपॉन 56. So that will be equal to 50 into 56 and 56x plus 50x. Or I can also write it like this. That will be 106x upon 50 into 56 hours. Okay, that is the total time and that is total distance we are having. So we can now find the speed, and this speed is obviously called the average speed. Or the total distance covered, that is 2x upon
The total time is 106x upon 50 into 56. I can write it like this. Simply ये वाले टर्म हमारी डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर में चला जाएगा. That will be 2x into 50 into 56 upon 106x. X and x is cancelled out, and I will got 5600 upon 106. And after simplification, I got 52.83 kilometers per hour. That is your average speed that you require. Okay, I thought the topic is clear to you.